ہر شہر ہر خبر میں خوش آمدید۔ سب سے پہلے رخ کریں گے پنجاب کا۔ حکومت پنجاب کی طرف سے اسموگ کی صورتحال کے پیش نظر اسکول بند کر کے آن لائن کلاسز کے احکامات جاری کیے ہیں۔ گجرانوالہ کے 1500 سے زائد اسکولوں سمیت پنجاب بھر میں 42,000 سرکاری اسکول ہیں۔ ہر جگہ پر بچوں کے پاس انٹرنیٹ، موبائل اور لیپ ٹاپ سہولیات موجود نہیں۔ بچوں کی بڑی تعداد آن لائن کلاسز سے محروم ہے۔ گجرانوالہ سے مدثر بخاری رپورٹ کر رہے ہیں۔ اسموگ کی وجہ سے اسکول بند کر کے آن لائن کلاسز کا آغاز کر دیا گیا، لیکن آن لائن کلاسز میں بہت مشکلات ہوتی ہیں۔ اسموگ کی وجہ سے جو ہمارے حکومت نے ہمارے اسکول بند کر دی ہیں اور آن لائن کلاسز شروع کر دی ہیں۔ میرے پاس تو انٹرنیٹ، موبائل، لیپ ٹاپ ہے جس سے میں آن لائن کلاسز لے سکتا ہوں، لیکن میرے کچھ دوست ایسے ہیں جن کے پاس انٹرنیٹ، موبائل نہ ہی لیپ ٹاپ ہے جس سے وہ آن لائن کلاسز نہیں لے سکتے۔ ان کو سرکاری اسکولوں میں پڑھنے والے بیشتر بچوں کے والدین کی اتنی مالی سکت نہیں کہ وہ انہیں آن لائن کلاسز کے لیے اینڈرائیڈ فون یا لیپ ٹاپ لے کر دیں۔ بچوں کو آپ لوگوں نے آن لائن کلاسز پہ لگایا ہے، بچوں کی پڑھائی سب ممکن نہیں ہے صحیح طرح۔ وہ بچے جن کے گھروں میں والدین کے پاس واٹس ایپ وغیرہ کی سہولت ہے، استاد انہیں اس پر کام وغیرہ بھیج دیتے ہیں اور اس طرح گزارا چل رہا ہے۔ جو بچے ناٹ افورڈڈ ہیں، غریب ہیں، سرکاری اسکولوں میں پڑھتے ہیں، نہ تو ان کے پاس اینڈرائیڈ فون ہے، نہ ان کے ماں باپ اتنی ہمت رکھتے ہیں کہ وہ بچوں کو اس طریقے سے آگے کلاسز آن لائن دلوا سکیں۔ حکومت کو چاہیے کہ احتیاطی تدابیر کے ساتھ اسکول کھولیں تاکہ تعلیم کا سلسلہ جاری رہ سکے۔ سردی کی آمد کے ساتھ ہی فیصل آباد میں بھی خشک میوہ جات کی دکانوں اور سٹالز کی رونقیں بحال ہو گئیں۔ ڈرائی فروٹ خریدنا ضروری، مگر قوت خرید کی کمی کی وجہ سے شہری پریشان دکھائی دے رہے ہیں۔ تفصیلات محمد نسیم شاہ کی رپورٹ میں دیکھیے۔ سردی کی آمد کے ساتھ ہی ملک بھر کی طرح فیصل آباد میں بھی ڈرائی فروٹس کی دکانوں اور سٹالوں کی رونقوں میں اضافہ ہو گیا ہے۔ عوام بڑی تعداد میں اپنی پسند اور بساط کے مطابق خشک میوہ جات کی خریداری کرتے نظر آ رہے ہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ گزشتہ سال کی نسبت ڈرائی فروٹس کی قیمتوں میں بے پناہ اضافہ ہو چکا ہے۔ بہت مہنگی آگے 500-600 روپے کلو میں مونگ پھلی تھی وہ 1000 روپے بتا رہے ہیں، 500 روپے اخروٹ تھا وہ بھی 800 روپے بتا رہے ہیں۔ باقی تو میں نے پوچھا ہی نہیں ہے، پھر کیا پوچھنا پھر۔ غریب بندے کے لیے مونگ پھلی تھی وہ بھی بہت مہنگی ہو گئی ہے، اور تو بس گزارا ہی کر رہے ہیں ہلکا پھلکا جو زبان کا تو ٹیسٹ کے لیے بس، ورنہ ہماری کوئی اتنی سکت نہیں ہے کہ اب ہم ڈرائی فروٹ کھائیں۔ مونگ پھلی خریدنے آیا تھا، 900 روپے کلو تھی، 500 روپے جیب میں تھا، نہیں لے ہوئے واپس جا رہے ہیں۔ ڈرائی فروٹس کی خریداری کے لیے آنے والے بعض شہری مہنگائی کو حیرت انگیز قرار نہیں دیتے۔ ان کا کہنا ہے کہ قیمتوں میں اضافہ ہر سال کا تسلسل ہے۔ مونگ پھلی وغیرہ تو ٹھیک ہی ہے، 1000 روپے کے جی ہے، پہلے بھی اتنی تھی۔ باقی دوسری چیزیں جو ہے وہ مہنگی ہوئی ہیں، جس میں جیسے کاجو ہے، وہ پستہ ہے، بادام ہے، وہ اتنا تو ہوتا ہی ہے پھر ہر سال میں۔ اس دفعہ یکدم اچانک اتنی زیادہ ٹھنڈ ہوئی ہے تو مہنگا تو ہونا ہی ہے، تھوڑا سا ہے ایکسٹرا، لیکن کوئی نہیں، اب کھانا تو ہے ہی ہے نا، سردی کو بھی بگانا ہے، اس کے ساتھ گزارا تو کرنا پڑے گا نا اب۔ شہریوں کا مزید کہنا ہے کہ سردی کے موسم میں طبی طور پر ڈرائی فروٹس کے بے شمار فوائد کی وجہ سے مجبوراً خریداری کرنی پڑتی ہے، جبکہ جیب اس کی اجازت نہیں دیتی۔ خشک میوہ جات سردیوں کی شان ہے، مگر قوت خرید کم ہونے کی وجہ سے خریدار بہت پریشان نظر آ رہا ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمد نسیم شاہ، ABN نیوز، فیصل آباد۔ راجن پور میں سردیوں کے آغاز کے ساتھ ہی ڈرائی فروٹ کی فروخت میں اضافہ ہو گیا ہے، مگر شہری قیمتوں میں اضافے سے پریشان دکھائی دیتے ہیں۔ مزید دیکھیں گے راؤ عقیل احمد کی رپورٹ۔ سردیاں رنگ جمانے کو تیار ہیں تو شہریوں نے بھی ٹھنڈے موسم میں خود کو محفوظ رکھنے کے لیے کوششیں شروع کر دی ہیں۔ ڈرائی فروٹ کا سردیوں میں استعمال ضروری ہوتا ہے، مگر رواں سال ڈرائی فروٹ کی قیمتوں میں 30 سے 40% اضافہ ہونے سے شہری بادام، پستہ، کاجو، اخروٹ خریدنے سے قاصر ہیں۔ قیمتوں کی بات کی جائے تو گزشتہ سیزن میں بادام 2500 روپے فی کلو فروخت ہو رہے تھے، مگر اب 3000 سے 3500 تک ریٹ جا پہنچے ہیں۔ دیگر میوہ جات کی قیمتیں بھی آسمان سے باتیں کر رہی ہیں۔ دکاندار کہتے ہیں بڑھتی مہنگائی کی وجہ سے ہمارا کاروبار شدید متاثر ہو رہا ہے۔ ڈرائی فروٹ کا سردیوں میں استعمال ہر گھر میں کیا جاتا ہے۔ گھر میں ہر میٹھا ڈرائی فروٹ کے بنا ادھورا سمجھا جاتا تھا، مگر اب مہنگائی کی وجہ سے ان کا استعمال عمرہ تک محدود ہو کر رہ گیا ہے۔ کیمرہ مین نوید بھٹی کے ساتھ راؤ عقیل احمد، نمائندہ ABN نیوز، راجن پور۔
मौसम तब्दील होते ही शेखपुरा में ड्राई फ्रूट की दुकानों को खुश्क मेवा जात से सजा दिया जाता है। शहरी ड्राई फ्रूट की दुकानों का रुख तो करते हैं, मगर कीमतें ज्यादा होने की वजह से ये भी शहरियों को खरीदो फरोख्त में मुश्किलात का सामना। मौसम सरमा की आमद के साथ ही शहरी ड्राई फ्रूट की दुकानों का रुख करते हुए कोई अखरोट, बादाम, काजू, पिस्ता तो कोई मूंगफली खरीदने के लिए ड्राई फ्रूट की दुकानों पर पहुंचता है, मगर यहाँ पर भी शहरी शिकवा करते नजर आते हैं। शहरियों का कहना है कि ड्राई फ्रूट जिस्म के लिए बेहद मुफीद भी होते हैं, लेकिन अब इनकी कीमतें ज्यादा होने की वजह से ये कुव्वत खरीद से बाहर होते जा रहे हैं। शहरियों ने हुकूमत वक्त से मुतालबा किया है, जहां दीगर अशिया की कीमतें कंट्रोल की जाती हैं, वहीं पर इनकी भी कीमतों पर कंट्रोल किया जाए ताकि वो आसानी के साथ ड्राई फ्रूट खरीद कर इस्तेमाल कर सके। अरबों रुपए की लागत से तामीर होने वाला लालेरा तौंसा पुल 7 साल गुजरने के बावजूद भी तकमील के मराहिल में ना पहुंच सका। 2 किलोमीटर लया तौंसा पुल के अतराफ की सड़कें भी ताहाल मुकम्मल नहीं हो सकी। देखते हैं मोहम्मद आसिफ खान की ये खुसूसी रिपोर्ट। लिया का मेगा प्रोजेक्ट लिया तौंसा पुल का बड़ा मंसूबा 7 साल गुजरने के बावजूद भी मुकम्मल ना हो सका। लिया और तौंसा के रिहायशियों की आसानी जमीनी फासला कम करने की गरज से 7 साल कबल दरिया सिंध पर लिया के मकाम पर 2 किलोमीटर तवील पुल की तामीर का आगाज तो किया गया, जिसका मकसद दोनों बड़े शहरों के रिहायशियों को जहां आमदोरफ्त में आसानी और कारोबारी सरगर्मियों में भी इजाफे का सबब बनना था, लेकिन ताहाल लिया तौंसा पुल का काम सुस्त रवि का शिकार हो चुका है। पुल बनाई ने इंदा ना तौसे दे लोग कोई यो फायदे ना लइए दे लोग कोई फायदे। पुल बना के रखी ने चा ना कोई सड़क है ना कोई काशे। मेहरबानी करन सोना सड़क बढ़ावन के गाल है कि ये 7 साल थी गए पुल बने हुए, करोड़ा अरब रुपए का खर्चा थिया पे, मगर इदी कोई बेनिफिट कोई नहीं। असा इल्तजा करे दे हुकूमत पंजाब को कि बराए मेहरबानी कोई इन ते तवज्जो करन। लिया तौंसा पुल के दोनों अतराफ अप्रोच रोड्स न बनने से अरबों रुपए की लागत से तामीर होने वाला लिया तौंसा पुल अपनी अफादियत खो चुका है। लोगों का मुतालबा है कि लिया तौंसा पुल के काम को जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए ताकि लोगों को आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना न करना पड़े। कैमरा टीम के साथ आसिफ खान, ABN न्यूज़, लिया। बहावलनगर में जनरल बस स्टैंड बदहाली और वीरानी का शिकार। सरकारी बस स्टैंड को प्राइवेट अड्डे बना दिया गया। इस सारी सूरत हाल पर इंतजामिया खामोश है। शहरियों का आला हुकाम से नोटिस देने का मुतालबा। मजीद देखते हैं मलिक मकबूल अहमद की ये रिपोर्ट। हुकूमत की जानब से जनरल बस स्टैंड 2012 में भावनगर शहर से निकालकर चिश्तियां रोड बाईपास मोल चौक पर बनाने की मंजूरी दी गई। साबिक वज़ीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ 2012 में दौरा भावनगर के मौका पर जनरल बस स्टैंड का इफ्तिताह किया। जिला इंतजामिया की जानब से जनरल बस स्टैंड तो बना दिया गया, लेकिन ये जनरल बस स्टैंड बदहाली और वीरानियों का शिकार हो चुका। जनरल बस स्टैंड पर आने वाले लोगों ने कहा कि बस स्टैंड के साथ ही प्राइवेट अड्डे बना दिए गए। प्राइवेट अड्डों से इस्लामाबाद, लाहौर, कराची और मुख्तलिफ शहरों को यहाँ से गाड़ियाँ जाती हैं। जो बाहर की जो है कि इसमें प्राइवेट गाड़ियाँ, उन्हें चाहिए कि वहाँ से या तो डायरेक्ट गाड़ी यहाँ पर आए, जबकि यहाँ पर जब गाड़ियाँ तो मुसाफिर ज़्यादा अक्सर यहाँ वेट करते हैं, लेकिन गाड़ी से बाहर से निकल जाती है। जब बाहर से गाड़ी निकलती है मुसाफिर उल जाते हैं। ज़ाहिर सी बात है, जब गाड़ी बाहर से जाएगी मुसाफिर यहाँ आएगा, यहाँ से जाएगा फिर वापस वहाँ जाएगा। शेड जो गाड़ियों के ऊपर लगाया जाता है वो नहीं लगाया गया, उसकी ग्रांट 2 मरतबा जारी हुई है। उसके बाद ये जो बिल्डिंग है खासी हालत इसकी ख़राब हो चुकी है, टूटियाँ इसके अंदर नहीं है, मतलब है कि इसका कोई सफाई का ख़ास इंतज़ाम नहीं है, ना कोई पूछने वाला है। सरकारी अड्डा पर मुसाफिर जो आए हैं उनका कहना है कि वज़ीर आला पंजाब फौरी तौर पर इस पर एक्शन ले, प्राइवेट अड्डे जो है इनको बंद कराया जाए और सरकारी अड्डे को कामयाब करवाया जाए। पंजाब हुकूमत की हदायत पर जो है बहावलनगर में बस स्टैंड तो बना दिया गया है, लेकिन ये बस स्टैंड जो बनाया गया है सरकारी तौर पर ये गैर फाल हो चुका है और यहाँ से गाड़ियाँ जाने की बजाय जो है प्राइवेट अड्डों से जो है वो गाड़ियाँ जा रही हैं लाहौर, इस्लामाबाद और मुल्तान, बहावलपुर के लिए। और यहाँ जो मुसाफिर आए हैं बस स्टैंड पे, इनका कहना है कि पंजाब हुकूमत को इस बस स्टैंड को जो है कामयाब करना चाहिए और यहाँ से गाड़ियाँ जानी चाहिए। और ये अड्डा जो है बदहाली और वीरानियों का शिकार हो चुका है। कैमरा टीम के साथ मलिक मकबूल अहमद, ABN न्यूज़, बहावलनगर। लुडन और इसके मुलाका इलाके की सड़कें अरसा दराज से टूट फूट का शिकार हैं। आए रोज हादसात मामूल बन गए। इलाका मकीनों को शहर की तरफ आने जाने में शदीद मुश्किलात का सामना है। मजीद देखते हैं आमिर जहूर की ये रिपोर्ट।
की तरक्की में सड़कें अहम किरदार अदा करती हैं। सड़कें किसी मुल्क के इंफ्रास्ट्रक्चर का बुनियादी हिस्सा होती हैं जो मुख्तलिफ इलाकों को आपस में जोड़ती हैं और सफ़र को आसान बनाती हैं। यह मुल्क की मईशत में भी अहम किरदार अदा करती हैं। जबकि दूसरी तरफ लुडन और उसके मुल्हिका इलाके मौजा फजलवा, गफूरवा और रत्ता टिब्बा की सड़कें अरसा दराज से टूट फूट का शिकार है, जिसकी वजह से तलबा, मुसाफिरों और मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। खस्ता हाल सड़कों की वजह से मरीजों को एक शहर से दूसरे शहर मुंतकिल करने में भी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। किसी भी मुल्क की तरक्की में सड़कें बहुत अहम किरदार अदा करती हैं। लुडन, अंदरून लुडन और उसके इर्द गिर्द के इलाकों की सड़कें इंतहाई खस्ता हाली का शिकार हैं, जबकि बाज़ औक़ात ज्यादा संजीदा मरीज रास्ते में ही दम तोड़ जाते हैं। लुडन के इर्द गिर्द दी सड़कां बहुत खराब ने जी, टुटियां फुटियां हुई ने जी, सानू लिहाजा मुश्किलात का शिकार है। मरीज लै जान तो असीं बहुत परेशान है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज को गुजारिश है कि साड़ी सड़कें ठीक की रही हैं। शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब DC व्याड़ी से मुतालबा किया है कि जल्द अज जल्द इन सड़कों की तमीर की जाए ताकि आसानी से हम एक शहर से दूसरे शहर की तरफ जा सके। कैमरामैन टीम के साथ मोहम्मद आमिर ज़हूर, ABN न्यूज़, लुडन। डहारावाला शहर का मसरूफ तरीन चौक यतीम वाला बेहंगम रश की वजह से शदीद ट्रैफिक जाम का शिकार है। ट्रैफिक पुलिस की मौजूदगी के बावजूद चौक पे हर तरफ रिक्शे बस खड़े हैं, जिसकी वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। डहारावाला में बस, रिक्शे, ट्रकों की पार्किंग और रोड ब्लॉक होने से ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम हो गया। शहरियों ने मुतालबा किया है कि ट्रैफिक पुलिस फौरी तौर पर यतीम वाला चौक और शहर की मेन रोड में रिक्शों, रेडियो की गैर कानूनी पार्किंग और रश को कंट्रोल करने के लिए मौसर इकदाम करे ताकि ट्रैफिक की रवानी बहाल हो और शहरियों को सुकून का सांस मिल सके। अगर पार्किंग जरूरी है तो रोड को छोड़कर साइड पर बस, रिक्शों, फ्रूट सब्जी वाले रिक्शे लगाए जाएं। टोबा टेक्सिंग के भट्टा मजदूरों और किसानों का एहतजाजी मुजाहरा। मुजाहिरीन का हुकूमत से स्मोग और आलूदगी से निपटने के लिए ठोस इक़दाम का मुतालबा। मोहम्मद आसिफ नदीम रिपोर्ट कर रहे हैं। टोबा टेक्सिंग में मजदूरों और भट्टों पर काम करने वाले सैकड़ों अफराद ने पाकिस्तान भट्टा मजदूर यूनियन और किसान तंजीमों के नेटवर्क पाकिस्तान किसान राब्ता कमेटी के ज़रिए तमाम एहतजाजी मुजाहरा में हुकूमत से सूबा पंजाब में स्मोग और आलूदगी से निपटने के लिए ठोस इक़दाम करने का मुतालबा। पाकिस्तान भट्टा मजदूर यूनियन के जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद शबीर की ज़रिए क़यादत सैकड़ों एहतजाजी मुजाहिरीन, जिसमें ख़वातीन और बच्चों की बड़ी तादाद शामिल थी, ने गोजरा रोड चुंगी से शहबाज चौक तक मार्च किया, जिसमें हुकूमत से मुतालबा किया गया कि वो कोयले पर मुस्तकिल और मुकम्मल पाबंदी आयद करें और मुल्क में फॉसिल फ्यूल की तौसीक को ख़त्म करें जो स्मोग और माहौलियाती आलूदगी की बुनियादी मुहर्रक हैं। इस मौका पर पाकिस्तान किसान राब्ता कमेटी के जनरल सेक्रेटरी फारूक तारक ने ABN न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा, रैली निकाले जिसका बुनियादी मकसद पाकिस्तान में माहौलियाती इंसाफ की मुहिम को तेज़ करना था और COP29 जो इस वक्त आज़रबाईजान बाकू में हो रही है, उस मौके पर आज पूरी दुनिया में आज मुजाहरे हुए हैं फॉसिल फ्यूल के ख़िलाफ़। यानी इसका मतलब ये है कि आप कोयले से, गैस से और तेल से बिजली बनाना बंद करें और सोलर से, हवा से, पानी से बिजली बनाना शुरू करें। ये हुकूमत ना फौरी रद्द-ए-अमल करती है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं करती। अभी भट्टा मजदूरों के भट्टों के खिलाफ भी कैंपेन जारी है। अभी ये किसानों को भी मुर्द इल्ज़ाम ठहरा रहे हैं कि वो फसलें जलाते हैं, स्कूल बंद कर दिए गए हैं, बच्चों की तालीम का बड़ा नुकसान हुआ है इस ज़मन में। लेकिन असल जो ज़िम्मेदार है उनकी तरफ इनका कोई इशारा भी नहीं है। पाकिस्तान की जो बड़ी सनत है वो सारी की सारी जहरीली गैसें जारी करती है। पाकिस्तान में कोयले पर इन्हिसार तेजी से बढ़ रहा है। हुकूमत ने हाल ही में दरामदी कोयले की लागत को पूरा करने के लिए थर के मुकामी लेगनाइट कोयले पर वापस जाने का भी इशारा दिया है। ताहम माहिरीन माहौलियात ने मुल्क में तवानाई की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए फोसल ईंधन पर बढ़ते हुए इन्हिसार की मजम्मत की है। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद आसिफ नदीम, ABN न्यूज़, टोबा टेक्सिंग। कसूर में पुलिस जाम को कंट्रोल करने में नाकाम है। थाना सदर के इलाके नोलड़ा के करीब डाकू शहरियों से लाखों रुपए लूट कर फरार हो गए। देखते हैं अपने नुमाइंदे मियां काशिफ की एक खुसूसी रिपोर्ट। बदलते मौसम के साथ धुंध ने डेरे डाले तो डाकू राज कायम हो गया। शहरी ना घरों में महफूज और ना ही रास्तों में। थाना सदर की हदूद रायविंड रोड नौल अड्डा के करीब दिन दहाड़े डाकुओं ने सिगरेट के ताजर को लाखों रुपए की नकदी से महरूम कर दिया। मगर हमेशा की तरह थाना सदर कसूर पुलिस 15 की कॉल पर जाए वकूआ पर 1 घंटा ताखीर से पहुंची। इस हवाले से मुतासरीन का बात करते हुए कहना था कि रायविंड रोड नौल अड्डे के पास सदर थाने का इलाका है और मेन रोड पे हमारे साथ गन पॉइंट पे वारदात हो गई है। 5.5-6 लाख रुपए
का हमारा नुकसान हुआ है। उसके बाद हमने 15 पे कॉल की है, जिसके बाद कोई तकरीबन घंटे बाद पुलिस पहुंची है। मुतासरीन का IG पंजाब से मुतालबा करते हुए कहना था कि गश्त के निज़ाम को बेहतर बनाया जाए और एमरजेंसी कॉल पर फौरी रिस्पांस किया जाए। कसूर पुलिस ने डाकुओं के खिलाफ कार्रवाइयां करते हुए पुलिस मुकाबले में दर्जन से जायद डाकुओं को जख्मी हालत में गिरफ्तार तो कर लिया, जबकि दूसरी जानब रोजाना की बुनियाद पर चोरी डकैती की वारदातों ने पुलिस को चैलेंज कर रखा है। कैमरा टीम के साथ मियां काशिफ, ABN न्यूज, कसूर। में मोटरवे पुलिस ने तकरीबन 8.5 लाख मालियत का खोया बैग मालिक के हवाले कर दिया। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक झांगड़ा शर्की से मुल्तान जाने वाली शहरी का बैग वॉशरूम में रह गया था, जिसके बाद ये बैग जलालपुर इंटरचेंज से पुलिस को मिला। बैग की नकदी, जेवरात और सामान की मालियत 8,47,000 रुपए थी, जिसे मालिक के हवाले कर दिया गया। रहीम यार खान कारोबार की आड़ में शहरी के 7 करोड़ों का हाथ हो गया। मुतासरा शहरी इंसाफ के लिए डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब पहुंच गया। हुकाम बाला से रकम वापस करवाने का मुतालबा कर दिया। रहीम यार खान कारोबार का झांसा देकर तेल के ताजर को पंप मालिक ने 2.5 करोड़ से ज्यादा की रकम बटोर ली। मुतासरा ताजर इंसाफ के लिए डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब पहुंच गया। मुतासरा सुलेमान खेल ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए इल्जाम आयद किया कि पंप मालिकान ने तेल लेकर 2.5 करोड़ से ज्यादा का टीका लगा दिया। रकम मांगने पर बासर अफराद की जानिब से संगीन नताइज की धमकियां दी जा रही हैं। मुतासरा शख्स की जानिब से DPO रहीम यार खान से फौरी रकम वापस दिलवाने का मुतालबा। तौंसा शरीफ ABN न्यूज की खबर पर एक्शन। टिब्बे कैसरानी में अताई डॉक्टर की जानिब से गलत इंजेक्शन लगाने पर 2 बच्चियों के जाँ भाग होने के मामले पर महकमा सेहत की कार्रवाई। अताई के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। ABN न्यूज की खबर पर महकमा सेहत के सोए हुए अफसरान जाग उठे। तौंसा शरीफ के नवाही इलाके टिब्बे कैसरानी में अताई डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई करते हुए नामुलजिम का क्लिनिक सील करके थाना रेड़ता में मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया। मुकदमा CEO हेल्थ डेरा गाजी खान की मुद्दत में दर्ज किया गया। FIR के मुताबिक मुलजिमान ने गैर कानूनी क्लिनिक खोल रखा था, जिसे सील कर दिया गया। मुतासरीन ने मुलजिमान के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और इंसाफ फराहम करने का मुतालबा किया है। चिनियोट जिले इंतजामिया महकमा ज़राअत के ज़रिए तमाम MC हॉल में ज्यादा गंदम उगाओ और स्मोक कंट्रोल आगाही मुहिम कन्वेंशन का इनेकाद किया गया। डिप्टी कमिश्नर चिनियोट सफीउल्लाह गोंदल ने बतौर मेहमानी खुसूसी शिरकत की है। चिनियोट म्यूनसिपल कमेटी चिनियोट के हॉल में कन्वेंशन का इनेकाद किया गया, जिसमें डिप्टी कमिश्नर ने बतौर मेहमानी खुसूसी शिरकत की। डिप्टी का कहना था कि इस साल जिला में 2,54,000 एकड़ पर गंदम काश्त का टारगेट है और अब तक 80,000 एकड़ के करीब गंदम काश्त की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि काश्तकार ज्यादा से ज्यादा गंदम उगाकर मुल्की मईशत में हिस्सादार बने। कहा स्मोक कंट्रोल के हवाले से काश्तकारों को उनकी जिम्मेदारी अदा करनी होगी। किसान फसलों की बाकियात को आग न लगाएं और दूसरों को भी आगाही दें। पंजाब असम्बली में मुसविदा कानून तरमीम ज़रा इनकम टैक्स पंजाब 2024 की मंजूरी के बाद तांदियावाला के जमींदारों ने इस बिल को मुआशी कत्ले आम करार दे दिया है। जमींदार इस बिल की मंजूरी के फैसले से नाला हैं। ज़रा इनकम टैक्स पंजाब बिल 2024 मंजूरी को तांदियावाला के जमींदारों ने मुआशी कत्ले आम करार दे दिया। जमींदारों का कहना है कि ज़रा इनकम टैक्स से जमींदारों की मुश्किलात में इजाफा होगा। छोटा और मुतवस्सित जमींदार पहले से फसल के रेट न होने के बराबर होने से परेशान। हुकूमत ने ज़रा इनकम टैक्स बिल मंजूर करके परेशानी में इजाफा कर दिया है। हुकूमत जमींदारों को रिलीफ देने के बजाय खून निचोड़ने पर लगी है। हुकूमत पंजाब जमींदारों को रिलीफ फराहम करने के इकदाम करे। बिहाड़ी में ऑल पाकिस्तान क्लर्क्स एसोसिएशन APCA के नौमुंतखब जिला ओहदेदारान की तकरीब हल्फ बर्दारी जिला काउंसिल हॉल में मुनक्किद की गई। MPA नईम खान की 36 ओहदेदारान से हलफ लिया गया। ऑल पाकिस्तान क्लर्क्स एसोसिएशन जिला बिहाड़ी की नौमुंतखब काबीना की तकरीब हल्फ बर्दारी जिला काउंसिल हॉल में मुनक्किद की गई। तकरीब में साबिक सूबाई वजीर ज़राअत नईम अख्तर खान, मरकजी सदर APCA चौधरी खालिद समेत तमाम महकमों के अफसरान और मुलाजमीन की कसीर तादाद में शिरकत। MPA नईम खान ने सदर तैयब भट्टी, जनरल सेक्रेटरी मलिक शहबाज रियाज खोकर समेत 36 ओहदेदारान से हलफ लिया और उन्हें अपने हल्फ की पासदारी की तलकीन की। हाजिरीन ने नौमुंतखब ओहदेदारान को मुबारकबाद पेश की, जबकि तकरीब से APCA मरकजी कायदीन ने मुलाजमीन के हकूक की जंग जारी रखने के आज़म का इजहार करते हुए नौमुंतखब ओहदेदारान को फराइज तंदही से अदा करने के अहकामात जारी किए और अपनी मुकम्मल सपोर्ट की यकीन दहानी भी करवाई। कबल अज़ीं नौमुंतखब ओहदेदारान ने मरकजी कायदीन के हमरा बल्दिया ऑफिस से जिला काउंसिल हॉल तक रैली निकाली।
रुकने सूबाई असम्बली पंजाब बिलाल यामीन सती ने अपर कोटली में 7 करोड़ और बरहद वार्ड में 1 करोड़ रुपए के फंड से तामीर होने वाली सड़कों का संग बुनियाद रख दिया। अपर कोटली में सड़कों के संग बुनियाद रखने की तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में पहुंचने पर बिलाल यामीन सती का जबरदस्त इस्तकबाल किया गया। उन्होंने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि अल्लाह ताला की मेहरबानी से ये मुमकिन हुआ कि वादों के मुताबिक फंड्स फराहम करने का सिलसिला जारी है। फंड्स हासिल करने के लिए हमें रवैयों में तब्दीली लाना होगी। मुझे बड़ी खुशी के कटरी कल्हाड़ी रोड की तामीर के लिए 90 करोड़ के फंड्स और क्लम्पिंग पार्क चिड़ा के लिए 20 करोड़ रुपए के फंड्स मिलने पर हुई, जिस पर सबसे पहले रब ताला का शुक्र अदा करता हूं और उसके बाद वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज का, जो कि बिलखुसूस जिला मरी की तामीर और तरक्की में खुसूसी दिलचस्पी रखती हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर आइवेंड में लाइव स्टॉक फार्मर कार्ड की रजिस्ट्रेशन का आगाज हो गया। जानवरों की बेहतरीन कफालत के लिए किसानों को बिला सूद कर्जे फराहम किए जाएंगे। देखेंगे तलहा शेख की रिपोर्ट। पंजाब मरियम नवाज की खुसूसी हदायत पर महकमा लाइव स्टॉक की जानब से तहसील भर में लाइव स्टॉक फार्मर कार्ड की रजिस्ट्रेशन का आगाज कर दिया गया। तहसील भर में 300 के करीब अफराद की रजिस्ट्रेशन का अमल मुकम्मल कर लिया है। रायवंड के तमाम हॉस्पिटल में इसके लिए फैसिलिटेशन डेस्क जो है वो कायम कर दिए गए हैं, जहाँ पे फार्मर की रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस जारी है। इसके तहत 5 महीने का प्रोसेस है। 4 महीने में फार्मर्स को खल, बंडा, साइलेज और मिनरल मिक्सचर जो है वो दिया जाएगा और इस पर किसी किस्म का कोई सूद नहीं लिया जाएगा। 5वें महीने में जो है कर्ज की अदायगी की जाएगी और सूद की रकम हुकूमत पंजाब अदा करेगी। इसके अलावा जो है ये वेंडर्स की लिस्ट जो है वो शाया कर दी गई है, जिसमें रायवंड में 7 वेंडर्स हैं जिससे ये चीज़ें खरीदी जा सकती हैं। वज़ीर आला पंजाब की इस स्कीम से सूबा भर में दूध और गोश्त की कमी को पूरा करने में मदद मिलेगी। तलहा शेख, ABN न्यूज़, रायवंड। गुजरावाला में महकमे सोशल वेलफेयर एंड बैतुल माल और जिला इंतजामिया के इश्तराक से एक रोज़ा फैमिली फेस्टिवल का इनेकाद किया गया। डिवीजन के तमाम अजला के सनत जार इंडस्ट्रियल होम्स और मुख्तलिफ समाजी तंजीमों की खवातीन की जानिब से हाथ से बनी मलबूसात और दीगर तैयार करदा मसनूआत की नुमाइश लगाई। मुख्तलिफ समाजी तंजीमों के नुमाइंदों और तमाम अजला की खवातीन और दीगर मुतल्लिका अफसरान ने शिरकत की। शुरका का कहना था कि पाकिस्तानी खवातीन हुनर के एतबार से दुनिया में किसी से कम नहीं। खवातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए घरेलू सनत और दस्तकारियों का फरोग नागुज़ीर है। खवातीन को हुनरमंद बनाकर इन्हें बाइज्जत रोजगार कमाने के काबिल बनाया जा सकता है। हाथ से बनी मसनूआत किसी भी लिहाज से बैनुल-अक़वामी मयार से कम नहीं। पाकपतन में सूफी बुजुर्ग फखरुद्दीन गिलानी और हजरत सैयद अली रजा गिलानी का 3 रोज़ा सालाना उर्स इख्तिताम पजीर हो गया। पाकपतन में सूफी बुजुर्ग फखरुद्दीन गिलानी हजरत अली रजा गिलानी का 3 रोज़ा सालाना उर्स इख्तिताम पजीर हो गया। आखिरी रसूमात की अदायगी सजादा नशीन सैयद हसन रजा गिलानी के हमरा खावर फरीद मानिका ने अदा की। तकरीब में मुरीदैन और अकीदतमंदों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। ननकाना साहब में बाबा गुरु नानक के 555वें जन्मदिन की 3 रोज़ा तकरीबात का पुरअमन इख्तिताम मकामी और बैरून ममालिक से आए हुए सिख यात्री सच्चा सूद फारूकाबाद रवाना हो गए हैं। बाबा गुरु नानक देव जी के जन्मदिन की तकरीबात ननकाना साहब में इख्तिताम पसीर हो गई और सिख यात्री गुरुद्वारा सच्चा सौदा की यात्रा के लिए सख्त हिफाजती इंतजामात में फारूकाबाद रवाना हो गए हैं। ननकाना पुलिस के अफसरान और जवानों ने सिक्योरिटी के साथ साथ मेहमान यात्रियों की मदद को भी यकीनी बनाया, जबकि फुल प्रूफ सिक्योरिटी के फरहमी पर सिख यात्रियों ने हुकूमत पाकिस्तान और पंजाब पुलिस का शुक्रिया अदा किया और कहा कि पाकिस्तान में मिलने वाली इज्जत, प्यार और सहूलियात काबिल फख्र हैं। DPO ननकाना साहब सैयद नदीम अब्बास ने कहा कि जन्मदिन की तकरीबात को पुरअमन बनाने में तमाम महकमों का किरदार काबिल तारीफ है और जिला पुलिस और दीगर अजला से आने वाले तमाम पुलिस अफसरान और जवानों को शाबाश देते हुए कहा कि अक़लियतों के मजहबी त्यौहार और मुक़द्दस मकामात की हिफाजत अहम जिम्मेदारी है। अपर चित्राल के मुख्तलिफ इलाकों में गुज़श्ता 2 दिनों से बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी है। सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। इलाका मकीनों के मुताबिक अपर चित्राल के इलाकों बरोगल, यारखून, शंदूर, राड़सपुर, मस्तोच, नसरगुल वगैरह में 2 से 4 इंच तक बर्फ पड़ चुकी है। बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। महकमे मौसमियात के मुताबिक बारिशों और बर्फबारी का ये सिलसिला मजीद कई दिन तक जारी रहने का इम्कान है।
खानपुर शहर और गिरदोनवाह के इलाकों में सुबह सवेरे से आसमान पर सयाह बादलों के डेरे। मौसम सरमा की पहली बारिश ने मौसम ठंडा ठार कर दिया। मौसम ठंडा होते ही शहरियों ने गर्म मलबूसात, कोट, चादरें, स्वेटर्स और गर्म टोपियों का इस्तेमाल शुरू कर दिया। बारिश की बदौलत इलाका भर की खुश्क साली और आलूदगी के खात्मे के साथ साथ मौसमी बीमारियों में कमी वाक़या होगी। जबकि महकमे ज़राअत के मुताबिक बारिश से गंदम की काश्त भी बर वक्त मुमकिन हो सकेगी। खैबर पख्तूनख्वा के जिला हंगू में पुलिस और सीटीडी ने अहम कार्रवाई करते हुए 3 दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिए। डीपीओ हंगू खालिद खान के मुताबिक दहशतगर्दों के कब्जे से भारी असलहा और धमाका खेज मवाद बरामद कर लिया गया। गिरफ्तार दहशतगर्द इंतहाई मतलूब थे और उनके सरों की कीमत मुकर्रर थी। डीपीओ हंगू का कहना है कि गिरफ्तार दहशतगर्द शहरियों के घरों को वीडियो बना के और उनसे भत्ता तलब करते। गिरफ्तार दहशतगर्द हंगू में अहम शख्सियात को निशाना बनाने के लिए आए थे। गिरफ्तार दहशतगर्दों से मजीद तफ्तीश जारी है। जिला औरंगज़ई सेंट्रल शहरियों का पीटीआई के मुंतखब एमएनए यूसुफ खान और एमपीए औरंगजेब खान के खिलाफ एहतजाजी जरगे का इनेकाद किया गया। एहतजाजी जरगे में शरीक मुकर्ररीन ने कहा कि अवाम ने वोट तरक्याती कामों के लिए दिया है। सेंट्रल औरंगज़ई में जितने तरक्याती प्रोजेक्ट्स पर काम बंद है वो जल्द अज जल्द शुरू करें और एमएनए और एमपीए ने सेंट्रल अक़वाम के साथ जो वादे किए उसको पूरा करें। अगर एमएनए और एमपीए ने मुतालबात नहीं माने तो उनके घर के सामने भरपूर एहतजाज किया जाएगा। वज़ीर आला के मामले खसूसी जेल खाना जात ने आईजी प्रिजन्स के हमरा मर्दान जेल का दौरा किया। इस मौके पर मेंबरान सूबाई असम्बली भी साथ मौजूद थे। इस मौके पर जदीद तरीन इंटरव्यू रूम, कॉल सेंटर और कंप्यूटर लैब का इफ्तिताह किया गया। इंटरव्यू रूम जो कैदियों और उनके खानदानों के दरमियान बेहतर राब्ते को फ़रोग देने के अज़्म की अलामत है। सुपरिटेंडेंट जेल नजम हुसैन अब्बास ने जेल की कार्रवाइयों और हालिया पेशरफ्त के बारे में तफसीली ब्रीफिंग दी। वज़ीर आला के मामले खसूसी बराए जेल खाना जात हुमायूं खान ने मजीद गुफ्तगू भी की। 7 साल गुजरने के बावजूद वादी तालाश लोअरदीर में 6 करोड़ की लागत से काउंटर चश्मी खान का राब्ता पुल तामीर न हो सका, जिसकी वजह से 10 देहात के 40,000 की आबादी मुश्किलात का शिकार है। इलाका मकीनों के मुताबिक राबता पुल का 90% तामीराती का काम मुकम्मल हो चुका है। फंड्स कमी के सबब ठेकेदार तामीराती काम अधूरा छोड़ गया है। खुशहाल खान खटक यूनिवर्सिटी करक में सूबाई वजीर तालीम मीना खान और वाइस चांसलर खुशहाल खान खटक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर नसीरुद्दीन ने एनर्जी एकेडमिक ब्लॉक और इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया। इस मौके पर 90 से ज्यादा स्कॉलर्स ने अपने रिसर्च पेपर्स पर प्रिंट किए गए और इसके बारे में मजीद तफसीलात जानेंगे शाकिर मनान खटक की रिपोर्ट में। खुशहाल खान खटक यूनिवर्सिटी करक में सूबाई वजीर तालीम मीना खान और वाइस चांसलर खुशहाल खान खटक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर नसीरुद्दीन ने एनर्जी एकेडमिक ब्लॉक और इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया। इस मौका पर 90 से ज़ायद स्कॉलर्स ने अपने रिसर्च पेपर्स प्रेजेंट किए। इफ्तिताही प्रोग्राम में रजिस्ट्रार खुशहाल खान खटक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर गनीउर रहमान समेत प्रोफेसर और तलबा ने कसीर तादाद में शिरकत की। इस मौका पर ABN न्यूज़ से गुफ्तगू करती हुई वाइस चांसलर खुशहाल खान खटक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर नसीरुद्दीन का कहना था कि हमें इंतहाई खुशी महसूस हो रही है कि आज दूसरी यूनिवर्सिटियों से तलबा प्रोफेसर खुशहाल खान खटक यूनिवर्सिटी में कॉन्फ्रेंस के लिए आए थे, जो कि इस बात का सबूत है कि खुशहाल खान खटक यूनिवर्सिटी पाकिस्तान की बेहतरीन यूनिवर्सिटियों में शामिल है। ये हमारा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस जो कि कोलैबोरेशन बिटवीन कोहाट यूनिवर्सिटी, खुशहाल खान खटक यूनिवर्सिटी और IR पंजाब, इल्मियत, यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स और फाटा के माबेन ये पूरी कंट्रीब्यूशन से कोलैबोरेशन से एक कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हो रहा है जो 3 डेज है। खान खटक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर नसीरुद्दीन का कहना था कि वक्त के साथ साथ हम खुशहाल खान खटक यूनिवर्सिटी में मजीद ब्लॉक्स का भी इफ्तिताह करेंगे। कैमरामैन कासिद खटक के साथ मोहम्मद शाकिर मनान, ABN न्यूज़ करक। लाड़काना में बदअमनी थम न सकी। बाकरानी रोड पर मुसल्लह मुल्जिमान ने फायरिंग करके दुकानदार को कत्ल किया और फरार हो गए। लाड़काना के थाना दड़ी के हदूद बाकरानी रोड पर मोटरसाइकिल सवार मुसल्लह मुल्जिमान ने फायरिंग करके दुकानदार मुख्तियार मेमन को कत्ल कर दिया। इतला पर पुलिस से पहुंचकर दुकानदार की लाश अस्पताल मुंतकिल कर दी। पुलिस का कहना है दुकानदार सुबह सवेरे दुकान खोलकर दुकान की सफाई कर रहा था तो मोटरसाइकिल सवार मुल्जिमान ने फायरिंग करके मुख्तियार कत्ल कर दिया। लाश का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। वाकया डकैती है या कोई मामला, तमाम पहलुओं से तफ्तीश की जा रही है।
मीरपुर खास में खेला जाने वाला पहला म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन फुटबॉल टूर्नामेंट यंग बलोच फुटबॉल क्लब ने जीत लिया। मेयर मीरपुर खास अब्दुल रऊफ गौरी समेत दीगर मेहमानों ने खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। मजीद देखते हैं आतिफ बलोच की एक खुसूसी रिपोर्ट। अली भुट्टो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स फुटबॉल ग्राउंड में खेले जाने वाले पहले म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन फुटबॉल टूर्नामेंट के फाइनल मैच में यंग बलोच फुटबॉल क्लब ने मेहराब 11 की टीम को 0 गोल के मुकाबले में 1 गोल से शिकस्त देकर कामयाबी हासिल की। फातिह टीम के स्ट्राइकर फराज बलोच ने मैच का वाहिद गोल स्कोर किया। इख्तितामी तकरीब से खिताब करते हुए मेयर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन अब्दुल रऊफ गौरी, टंडोलियान जिला के कायम मुकाम चेयरमैन दरिया खान मरी, पीपल्स पार्टी के रहनुमा करण कुमार और सिंध फुटबॉल एसोसिएशन के सदर आजम खान ने कामयाब टूर्नामेंट के इनेकाद पर मुंतजमीन को मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि इस तरह के टूर्नामेंट नौजवानों के लिए बेहद जरूरी है, जिसमें उन्हें अपनी कारकर्दगी दिखाने का मौका मिलता है। उनका मजीद कहना था कि जिस तरह हुकूमत सिंध ने कराची में फुटबॉल के ग्राउंड्स बनाए हैं, इसी तरह मीरपुर खास के ग्राउंड्स की हालत जार को भी बेहतर किया जाए। टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजर माजिद जान लाशारी और साजिद लाशारी ने तमाम मेहमानों की आमद पर उनका शुक्रिया अदा किया और उन्हें बलोची पग और अजरक के तहफ़ पेश किए। आखिर में मेहमानों ने खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। इस मौके पर सिंध फुटबॉल एसोसिएशन के दीगर ओहदेदारान, मुख्तलिफ इजला की फुटबॉल एसोसिएशन के सदूर और शहर के मुअज़्ज़िज़ीन के अलावा खिलाड़ियों और शायकीन फुटबॉल की बड़ी तादाद मौजूद थी। आतिफ बलोच, ABN न्यूज़, मीरपुर खास। सिंध के किसानों को मज़ीद सहूलियात फराहम करने के लिए महकमे ज़राअत तौसी की जानिब से सखर के निजी शादी हॉल में तकरीब मुनक्किद की गई। तकरीब में वज़ीर ज़राअत मोहम्मद बख्श खान महर, मेयर सुखरान सालान शेख, चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट काउंसिल सखर सैयद कबीर हैदर शाह और दीगर ने शिरकत की और सिंध के किसानों में बेनज़ीर कार्ड तकसीम किए गए। मज़ीद देखते हैं पराग शर्मा की ये रिपोर्ट। किसानों को मजीद सहूलियत फराहम करने के लिए महकमा ज़राअत तौसी की जानिब से सखर के मकामी हाल में तकरीब मुनक्किद की गई। तकरीब में वज़ीर ज़राअत मोहम्मद बख्श खान मर, मेयर सखर अरसलान शेख, चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट काउंसिल सखर सैयद कुमेल हैदर शाह और दीगर ने शिरकत की और सिंध के हारियों में बेनज़ीर हारी कार्ड तकसीम किए गए। हारी कार्ड का जो ऑफिशियल एक लॉन्च था वो हमने कराची में 1 महीना पहले किया था और उसमें चेयरमैन बिलावल भुट्टो मौजूद थे, उन्होंने खुद कार्ड डिस्ट्रीब्यूट किए। आज जो है सखर में हमने डिस्ट्रीब्यूशन की है, काफ़ी और डिस्ट्रिक्ट में भी डिस्ट्रीब्यूशन हुई है और ये कार्ड जो है एक ATM कार्ड, एक गेम चेंजर है। हमारे खुसूसन सिंध के लिए बहुत खुशाइन बात है क्योंकि हमारी जो मेन मईशत है वो ज़राअत बेस्ड, एग्रीकल्चर बेस्ड। समाजी रहनुमा शाइस्ता खोसो ने कहा कि सिंध हुकूमत की जानिब से बहुत ही अच्छे इकदाम हैं। बेनज़ीर हारी कार्ड से ज़मींदारों को ज़्यादा सहूलियत मिल सकती है। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि हारियों का और गवर्नमेंट का डायरेक्ट लिंक है, क्योंकि जो हारी कार्ड दिया गया है वो हारियों को ही दिया गया है और उनके अकाउंट में जो भी उनको सब्सिडी मिलेगी उनके अकाउंट में ही आएगी। तो मैं समझती हूँ जो माजी में हारियों को बेनिफिट्स नहीं हुए और इस कार्ड से ज़रूर होंगे और ये सिंध गवर्नमेंट का बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। सिंध हुकूमत की जानिब से बेनज़ीर हारी कार्ड इंतखाब फॉर्म से मशरूत किया गया है, जिससे खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है कि लाखों बेज़मीन किसान बेनज़ीर हारी कार्ड से महरूम रह जाएंगे। कैमरामैन गुलाम मुस्तफा शेख के साथ पराग शर्मा, ABN न्यूज़ सखर। सिबी बलोचिस्तान असम्बली के हल्का PB8 में ज़िमनी इंतखाब कल होगा। 124 पोलिंग स्टेशन में वोटर्स हक़ राय दही का इस्तेमाल करेंगे। 1,16,161 वोटर्स हक़ राय दही का इस्तेमाल करेंगे। हल्के में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। हल्का के 34 पोलिंग स्टेशन इंतहाई हसास करार दे दिए गए। पंचगोर टीचिंग हस्पताल अदम तवज्जुही का शिकार है। हस्पताल में डॉक्टर्स, अद्वियात और दीगर बुनियादी सहूलियात का फुकदान, शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। इलाका मकीनों के मुताबिक हस्पताल की 10 से ज्यादा एम्बुलेंसेज खस्ता हाली का शिकार। हस्पताल में सहूलियात का फुकदान, आला हुकाम नोटिस लें ताकि शहरियों के लिए आसानी हो सके। और अब रुख करेंगे आज़ाद कश्मीर का। सदर आज़ाद जम्मू कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी से सदारती मुशीर चौधरी मोहम्मद महबूब एडवोकेट की ऐवान सदर कश्मीर हाउस इस्लामाबाद में तफसीली मुलाकात। इस मौके पर मुलाकात में सदर आज़ाद जम्मू कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी के 2 रोज़ा दौरा कोटली के प्रोग्राम को हतमी शक्ल दी गई, जबकि प्रोग्राम के मुताबिक सदर रियासत आज़ाद जम्मू कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान मोहम्मद चौधरी मोरखा 20 नवंबर बरोज बुध अपने 2 रोज़ा दौरे पर कोटली पहुंचेंगे। इसके अलावा सदर रियासत आज़ाद कश्मीर से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर के सीनियर रहनुमा कमर उज़्ज़मान ने कश्मीर हाउस मुलाकात की। इस मौके पर कमर उज़्ज़मान ने सदर आज़ाद कश्मीर की मसला कश्मीर को आलमी सतह पर उजागर करने की कोशिशों को सराहा है।
वादी लीपा में रात से पहाड़ों पर बर्फबारी जबकि मैदानी इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी। अब तक शेरगली टॉप पर 6 इंच से ज्यादा बर्फ पड़ चुकी है। वादी लीपा को चारों तरफ से बर्फबारी ने अपनी लपेट में ले लिया। पहाड़ों पर हर तरफ सफेदी छा गई। रात से बारिश जारी जबकि पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला जारी। अब तक शेरगली रोड पर 6 इंच बर्फ पड़ चुकी है। झेलम वैली के ज़ेरे इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश और बुलंदबाला पहाड़ों ने बर्फबारी होने से सफेद चादर ओढ़ ली। जुम्मा और हफ्ता की रात झेलम वैली भर के ज़ेरे इलाकों में शुरू होने वाली बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला हफ्ते को दिन भर जारी रहा। हटियाबाला, चकोटी, चनारी और दीगर इलाकों पर बर्फबारी हुई। वादी लीपा में चलने वाली पब्लिक ट्रांसपोर्ट, बसें और वैन बर्फबारी के बाइस बंद हो गई। शदीद बारिश के बायस जहां सर्दी की शिद्दत में इजाफा भी हो गया। पानीओला और मुज़ाफात में बारिश का सिलसिला जारी। बाला इलाकों में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी से सर्दियां लौट आई। बारिश बरसने से मौसम खुशगवार, शहरी बारिश को देखकर खुश। बाला इलाकों में बर्फबारी से मौसम सर्द हो गया। लोगों ने गर्म मलबूसात पहन लिए। रावलाकोट में सदारती ऑर्डिनेंस के खिलाफ शहरियों का मुश्तरका एहतजाजी मुजाहरा। मुजाहरीन ने इसको काला कानून करार दे दिया। शुरका एहतजाज ने शहर में रैली निकाली जो बाद में मुनीर चौक पहुंचकर धरने की सूरत इख्तियार कर गई। एहतजाजी मुजाहरीन और पुलिस आमने सामने, ताहम पुलिस और मुजाहरीन के दरमियान तसादुम नहीं हुआ। एहतजाजी मुजाहरे की क़यादत चेयरमैन JKLF सरदार सगीर और सदर अवामी नेशनल पार्टी सरदार लियाकत हयात ने करी है। पाक और जिला बाग के दूर अफ्ताद इलाकों में बुनियादी तिबी सहूलियात की फरहमी में मसरूफ। तहसील रेड़ा के निजी मेडिकल सेंटर में पाक फौज की 1 माउंटेन बटालियन की जानिब से मरीजों को मुफ्त चेकअप के साथ मुफ्त अद्वियात भी फरहम की गई। इस मौके पर मुख्तलिफ अमराज की तशखीस के लिए टेस्ट भी किए गए। मकामी अफराद का कहना था कि पाक फौज सरहदों की हिफाजत के साथ साथ आवाम की खिदमत में भी मसरूफ है। दूर दराज इलाकों में डॉक्टर्स की अदम दस्तियाबी हमारे लिए मुश्किलात का बाइस है। पाक फौज के फ्री मेडिकल कैंप से हमें हमारी दहलीज पर तिबी सहूलियात मुयसर आती हैं, जिस पर उनका शुक्रिया अदा करते हैं। यहाँ पर डॉक्टरों की बहुत कमी थी तो आर्मी वालों ने यहाँ पर फ्री कैंप लगाया। हमने यहाँ से चेकअप करवाया, मेडिसिन यहाँ से फ्री मिली है और हम इनका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। पाक आर्मी ने यहाँ रेड़ा बाजार में कैंप लगाया। मेरा बच्चा बहुत बीमार था, तकरीबन 4 महीने से। डॉक्टर साहब ने चेक किया और उन्होंने बहुत अच्छी मेरे बच्चे की ट्रीटमेंट की और दवाइयाँ भी पाक आर्मी की तरफ से हमें फ्री मिली।